अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ऑल दिस कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गिविंग यू सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर, that what is written in this chapter. Chinese New Year, also called the Lunar New Year, annual 15-day festival in China and Chinese communities around the world that begins with the new moon that occurs sometime between January 21 and February 20. According to Western calendar, festivities last until the following full moon. The holiday is sometimes called the Lunar New Year. Before the dates of celebration follow the phases of the moon. Since the mid-1990s, people in China have been given 7 consecutive days of work during the Chinese New Year. This week of relaxation has been designated Spring Festival, a term that is sometimes used to refer to the Chinese New Year in general. The origins of the Chinese New Year are steeped in legend. One legend is that thousands of years ago a monster named Nian would attack village at the beginning of each new year. The monster was afraid of loud noises, bright lights and the color red, so those things were used to chase the best way. Celebration to usher out the old year and bring forth and luck the prosperity of the new one therefore often include firecrackers, fireworks and red clothes and decorations. Young people are given money in colorful red envelopes. In addition, Chinese New Year is a time to feast and to visit family members. Many traditions of the season honor relatives who have died. And other Chinese New Year traditions is the thorough cleaning of the one's home to rid the resident of any lingering bad luck. Some people prepare and enjoy special food on certain days during the celebration. The last event held during the Chinese New Year is called the Lantern Festival, during which people hang glowing lanterns in temple or carry them during a nighttime parade. Since the dragon is a Chinese symbol of good fortune, a dragon dance highlights festival celebration in many areas. This procession involves a long, colorful dragon being carried through the street by numerous dancers. So students, this was a brief introduction about this chapter. Now we move on to the translation of the chapter. First paragraph. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of New Year according to the Chinese lunar calendar. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. The holiday is celebrated with big family gathering, gifts giving, eating of the symbolic food and display of the festive decoration, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. चीनियों का नया साल एक छुट्टी का दिन है जिसको चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल का आगाज़ करने के लिए मनाते हैं। ये चीनी ख़ानदानों के लिए इंतहाई अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी समझा जाता है। इस छुट्टी को बड़े ख़ानदानी इज्तिमात से तोहफ़े तोहफ़ देकर, अलामती खाने खाकर और त्यौहारी सजावटों की नुमाइश के साथ मनाया जाता है, जिसमें इन सब का असल मकसद नए साल के लिए
खुशबख्ती लाना और बहार की आमद का जश्न मनाना होता है। इन चाइना, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20. Celebration can actually last up to a month. चीन में चीनियों के नए साल जैसी रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए अब तक कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद के अशकाल पर है, जिसका सूरज की निस्बत चक्कर छोटा होता है, इसलिए चीनियों का नया साल हर साल एक ही दिन को नहीं आता, बल्कि मखसूस अंदाज में 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान किसी वक्त आता है। तकरीबात असल में एक महीने तक जारी रह सकती हैं। Students, there is a question in a box. Why is Chinese New Year never on the same day each year? हर साल चीनियों का जो नया साल है वह उसी दिन या उसी तारीख को क्यों नहीं आता? So the answer is the Chinese follow lunar calendar which differs from Georgian calendar. Therefore, Chinese New Year never starts on the same date each year. क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो कमरी कैलेंडर को यानी कि चाँद के मुताबिक जो उनका कैलेंडर है उसको फॉलो करते हैं, इसी वजह से उनका जो हर साल जो दिन है या तारीख है वो तब्दील होती है। स्टूडेंट्स, देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, देयर प्रोनाउंसिएशंस, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 1। फर्स्ट वन इज़ सिम्बॉलिक। ठीक है, ये सिम्बॉलिक का प्रोनाउंसिएशन है। मीनिंग है इसका अलामती और सिनोनिम फिगरेटिव। डिस्प्ले नुमाइश करना, एग्जिबिट। गैदरिंग इज्तमा मीटिंग। फेस्टिव त्यौहार से मुतल्लिका, जॉयफुल। लक किस्मत, फेट। ट्रेडिशंस रस्म व रवाज, हेरिटेज। एसोसिएटेड मंसूब करना, रिलेटेड। फेजेस मरहले, स्टेजेस। There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 1. First one is symbolic. She thought her role was more symbolic. Display, she displayed her talents. Gathering, the car was gathering speed. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं। बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बेटा आपने उनकी घर में प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद से कोशिश करनी है उनको सादा अल्फाज में बनाने की। और यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी है, उनके स्पेलिंग्स को याद करना है, सिनोनिम्स को याद करना है। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 2, क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स। हाँ जी, ये जो पैराग्राफ है ये अपने घरों को साफ़ रखने और नए कपड़ों से रिलेटेड है कि वो कैसे अपने घरों को साफ़ करते हैं और कैसे नए कपड़े ख़रीदते हैं। फर्स्ट वन, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज़ customary for families to thoroughly clean their houses. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. नए साल के पहले दिन से कबल ख़ानदानों में ये रिवाज है कि वह अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से गुज़श्ता साल की किसी भी बदबख्ती को ख़त्म करना है और घर को आने वाले नए साल के लिए तैयार करना है। All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. तमाम सफाई का काम नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि नए साल की खुशबख्ती को हादसाती तौर पर ज़ाया करने का कोई मौका ना रहे। मौत से वाबस्तगी की बिना पर काला रंग पहनने की इजाज़त नहीं होती। बहरहाल सुर्ख रंग को पहनने की हौसला अफजाई की जाती है चूँकि ये रंग बदरूहों से तहफ़्फ़ुज़ करने से वाबस्ता है। Students, there is a question in a box. What is the Chinese belief about cleaning houses before the New Year day? So the answer is to clean the house before the start of the New Year is like to wipe away the bad luck of the previous year. चाइनीज़ जो हैं वो क्यों ये यकीन रखते हैं कि नए साल शुरू होने से पहले घरों की सफाई की जानी चाहिए? तो वो इसलिए कि वो ये यकीन रखते हैं कि पिछले साल के जितने भी बुरी चीज़ें हैं उनको हम सफाई के ज़रिए
बाहर निकाल देंगे और नए साल में वो दाखिल नहीं होंगी। There are some difficult words, their pronunciations, meanings and synonym related to the paragraph number 2. First one is customary. Customary मतलब रस्मी, usual, chance, मौका, possibility, fortune, किस्मत, destiny, wearing, पहनना, trying, spirit, रूह यानी कि soul, warding off, दूर करना, to avoid by, however, ताहम या बहरहाल, though. Encouraged, हौसला अफजा, inspire. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 2. First one is customary. Their team represent their customary dance. Chance, everyone deserves a fair chance. Fortune, he won a fortune in the lottery. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी आपने होमवर्क के तौर पर ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है। Now we move on to the paragraph number 3. Decorating the house. अपने घरों को कैसे साफ़ किया जाता है। सजाया कैसे जाता है। Another popular custom is to hang up signs and posters on door and with windows with the Chinese word fu यानी कि फू written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and new beginning. एक दूसरा मकबूल रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामात और बड़ी तस्वीर लटकाना है जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी है। घर के लिए फूल ख़रीदने का भी मामूल है चूँकि वो बहार की आमद और एक नए आगाज़ की अलामत हैं। पैराग्राफ नंबर 4. न्यू ईयर्स इवनिंग डिनर. साले नौ यानी कि नए साल की आमद पर शाम का खाना। ऑन द इवनिंग evening of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's evening dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. यहाँ बहुत से मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। ये एक चीनी ख़ानदान में नए साल की आमद पर शाम के खाने के लिए 8 से 9 तक खाने तैयार करने का रिवाज है, जिसकी वजह यह है कि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब है देर तक कायम रहने वाला। सो स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन अ बॉक्स, व्हाई डज़ दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज़। उनका जो शाम का खाना है या रात का खाना वो 8 से 9 डिशेस पर क्यों मुश्तमिल होता है। सो द आंसर इज़ इट इज़ बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रोस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। क्योंकि चाइनीज़ ज़बान के अंदर लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली है और लफ्ज़ 9 का मतलब है देर तक कायम रहने वाला। There are some difficult words, their pronunciations, meanings and synonym related to the paragraph number 3 and 4. First one is decorating. Decorating means सजाना, furnish. Signs, अलामतें, signals. Means ज़राए यानी कि ways. Hang up, लटकाना, seize. Spring, बहार. May time यानी कि मई के वक्त में आती है बहार, ठीक है। Happiness, खुशी, player. Partake, हिस्सा लेना, take part in. Prosperity, खुशहाली यानी कि success. There are some difficult words and sentences related to the paragraph number 3 and 4. First one is decorating. She decorated her room. Signs, there was no sign of anyone. Means, there are different means of transport in city. बेटा यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, बाकियों को कि अपने सेंटेंसेस में उनको यूज़ करें और उनके सिनोनिम्स को याद करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को भी याद करना है। Now we move on to the paragraph number 5. Giving good luck gifts. खुशकिस्मती के तोहफ़े देना. It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver.
ये बालिगों यानी कि बड़े लोगों का रवायती दस्तूर है कि वो आने वाले साल के लिए मालो दौलत और खुशहाली के अलामती इजहार के लिए पैसों से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे बच्चों को देते हैं। ये बात भी बड़ों में आम है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट पेश करते हैं। लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक वसूल कुनिंदा देने वाले के घर से रुखसत नहीं हो जाता, यानी कि जो देने वाले लोग हैं वो जब तक अपने उनके मेहमान यानी कि घर से ना चला जाए तब तक वो अपने उन पैकेट्स को खोल नहीं सकते। ये उनकी रवायत है। पैराग्राफ नंबर 6, ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों की इज्जत करना। Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. These animals are often represented in decorations. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. हर साल चीनी बरूज के 12 जानवरों में से एक से वाबस्ता होता है। इन जानवरों की अक्सर ज़बाइशी अशिया की शक्ल में नुमाइंदगी की जाती है। कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं, हो सकता है कि वो उस जानवर की फितरत की खसूसियात के हामिल हों। देयर इज़ अ क्वेश्चन इन अ बॉक्स, इज़ चाइनीज़ बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग करैक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स a fact or an opinion? हाँ जी, so the answer is the Chinese belief is not just an opinion but a fact. We can see that some people are as hardworking as a donkey, but they do not have much success in life because of their foolishness. On the contrary way, some are wise as an owl. Such people make a very little efforts but win a great fame and fortune in life. So these examples prove the truth of the Chinese belief. चीनी अकीदा महज एक राय नहीं है बल्कि एक हकीकत है। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग इतने मेहनती होते हैं जैसा कि एक गधा, लेकिन वो अपनी बेवकूफ़ी की बिना पर ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बरक्स कुछ लोग इतने अक्लमंद होते हैं जैसे कि एक उल्लू। ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कम काम करते हैं या मुश्किलात उठाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शोहरत और मालो दौलत हासिल कर लेते हैं। लिहाजा ये मिसालें चीनी अकीदे की सच्चाई की तस्दीक करती हैं। There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 5 and 6. First one is adults. Adults mean baligh, grown up. Envelopes, लिफाफे, cover. Filled, भरे हुए या भरना means fill up. Wealth, दौलत means money. Recipient, वसूल कनिंदा receiver. Traits, खसूसियात quality. Giver, देने वाला यानी कि donor. Often, अक्सर यानी कि frequently. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 5 and 6. First one is adults. Children get bored by adults conversation. बच्चे जो हैं वो बड़ों की जो बातचीत है उससे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ठीक है। Envelope, he gave me money in an envelope. उन्होंने मुझे लिफाफे के अंदर पैसे दिए। Filled, his voice was filled by emotions. उसकी आवाज़ जो थी वो जज्बे से या इमोशन से भरी हुई थी। सो बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं। बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आपने ख़ुद से घर में प्रैक्टिस करनी है, उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने उनके स्पेलिंग्स को याद करना है, प्रोनाउंसिएशन को देखना है आपने साथ साथ, ताकि आपकी ट्रांसलेशन बेहतर हो सके, आप जो है मतलब कि अच्छे तरीके से लफ्ज़ों को अदा कर सकें। मीनिंग्स को आपने याद करना है, सिनोनिम्स को याद करना है अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए। ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 7. Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चीनियों का नया साल एक ऐसा मौका होता है जब ख़ानदान को उस साल के लिए शुक्र अदा करने के लिए जो गुज़र गया है और आने वाले साल के लिए अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है बेटा, देयर इज़ अ थीम रिलेटेड टू दिस चैप्टर कि इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया, असल में थीम क्या है, बताने का मकसद क्या है।
Chinese New Year is one of the major festivals in Chinese culture. Just like other ethnic communities of the world, in China too, the New Year is the most important day of the year. This is the time when the family members strive to be with their near and dear ones. They regard this as a time to usher out of the old year and welcome the new with great festivities and merry making. चीनी साल नौ चीनी सकाफत के बड़े बड़े त्योहारों में से एक है। दुनिया के दूसरे नस्ली लोगों की तरह चीन में भी नया साल साल का अहम तरीन दिन होता है। ये वो वक्त होता है जब ख़ानदान के अफराद अपने करीबी रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ मौजूद होने की कोशिश करते हैं। वो उसे पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल को बड़ी पुरमसरत तकारीब और खुशियाँ मनाकर खुशामदीद कहने का दिन करार देते हैं। There are some difficult words, their pronunciations, meanings and synonyms related to the paragraph number 7. First one is together, इकट्ठे होना यानी कि jointly. Thanks, शुक्रिया, gratitude. Associated, मंसूब करना, related. Reinvigorate, मुस्तहकम करना, strengthen. Give, देना, hand over. Past, गुजरना, move. Coming, आने वाले means approach. There are some difficult words and sentences related to the paragraph number 7. First one is together. They studied together in a library. उन्होंने इकट्ठे लाइब्रेरी में पढ़ाई की. Thanks, शुक्रिया अदा करना. He thanks to me for helping him. उसने अपनी मदद करने पर मेरा शुक्रिया अदा किया. Associated, he associated himself with a great cause. उसने अपने आप को एक अजीम मकसद के साथ जोड़ लिया या मंसूब कर लिया. तो बेटा यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और इनको सबको याद करना है। आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।